हमें इस मुजस्समे को तोड़ना होगा। नहीं, हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। हमें सख्ती करने पर मजबूर मत करें। मैं आमून को जरूर तोड़ूंगा ताकि सब जान जाएं कि ये पत्थर का मुजस्समा लायक परस्तिश नहीं है। आमून के कहर से डरे, वो आप लोगों से शदीद इंतकाम लेगा। आप हमारी फिक्र मत करें, आमून को हमसे इंतकाम लेने दें। आमून के सामने से हट जाएं। नहीं, मैं इजाजत नहीं दूंगा। आपको आमून के करीब नहीं जाना चाहिए। आपको आमून की तौहीन करने का कोई हक नहीं है। इससे पहले कि मेरे गैज़ गज़ब का शिकार हो जाए, साबिस हट जाओ। हट जाओ। आमून की लानत हो तुम लोगों पर। आमून की मार हो तुम लोगों पर। खुदाओं का कहर है तुम लोगों पर। क्या कर रहे हैं? आमून खुदाओं का खुदा अपने असली मकाम यानी आसमान की बुलंदियों में चला गया ताकि मुनासिब वक्त आने पर जमीन पर वापस लौटे और अपने दुश्मनों से इंतकाम ले। आमून आसमान परवास कर गया। वो जरूर वापस आएगा। आमून अपने दुश्मनों से इंतकाम लेगा। आमून मिस्र का खुदाए अजीम गायब हो गया है और वो बहुत जल्द इंतकाम लेने के लिए वापस आएगा। मुझे यकीन है आमून जरूर वापस आएगा और सबसे इंतकाम लेकर रहेगा। मुझे यकीन है कि आमून यहीं कहीं है, यहां से बाहर नहीं गया है। आमून ऊपर आसमानों में चला गया है या नीचे जमीन में? जनाबे हुरमहू, इन्हें जिंदान ज़ावीरा ले जाइए ताकि बाद में इनका मुहाकिमा किया जा सके। लानत हो तुम पर आमून और लानत हो तुम पर आखमाहू, जिसने हजारों साल हमें फरेब दिया है। इस तरह कहने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हो रही है? तुम्हें आमून की तौहीन करने का कोई हक नहीं। आज शहर भर में चरागाह और पुरस्कों जश्न का एहतमाम होना चाहिए। मैं आज के दिन को बुत परस्ती पर यकता परस्ती के फतह का दिन समझता हूँ और पैगंबर खुदा जनाब युजारसीफ को इस कामयाबी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं आपका भी सिपासगुजार हूँ जनाब हुरमहू,
آپ نے اس تمام معاملے کو نہایت مدبرانہ انداز میں سنبھالا ہے. آفرین. میں حکم دیتا ہوں کہ آج سے آمون کا نام قصر کے تمام در و دیوار سے مٹا دیا جائے اور اس کی جگہ آتون کا نام کندہ کروا دیا جائے، یعنی خدائے یکتا کا. اور حکم دیتا ہوں کہ آخمہو اور ان کے شریک جرم ساتھیوں کو تادم مرگ قید میں رکھا جائے. ہم اگر کچھ تو خون کے حق میں ہوتے تو آج ان کی زندگی کا آخری دن ہوتا، لیکن ہم ان کی جاں بخشی کرتے ہیں. تمام شہر میں چراغاں کیا جائے اور پورے مصر میں فتح و کامرانی کا جشن منایا جائے. ماں مجھے بہت بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو دے دو. کچھ تو کرو یہودا، یہ بچہ بھوکا ہے. یوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے سے کیا ہوگا؟ غروب ہونے تک برداشت کرو. قحط ہے، روزانہ دن میں صرف ایک مرتبہ ہی کھانا کھایا جا سکتا ہے. بچے تو یہ باتیں نہیں سمجھتے نا، وہ بہت بھوکا ہے. تو اسے سمجھانے کی کوشش کرو نا، چارہ بھی تو نہیں ہے. سلام لاوی. سلام بنیامین. کیا ہوا، آج راستہ کیسے بھول گئے؟ نہیں، وہ بابا نے مجھے بھیجا ہے. جاؤ بیٹا، جاؤ جا کر کھیلو. مذاق مت کرو بھائی، بابا کو ہم سے کیا مطلب؟ پتہ نہیں، بس انہوں نے فرمایا کہ اپنے بھائیوں کو یہاں بلاؤ. خود انہوں نے کہا کہ اپنے بھائیوں کو بلا کر لاؤ. کہا تو یہی ہے. بابا نے تو برسوں سے کوئی کلام نہیں کیا، اب اچانک ایسا کیا ہو گیا؟ کیا تم قسم کھا سکتے ہو کہ خود بابا نے ہمیں بلوایا ہے؟ قسم کی کیا بات ہے؟ آخر آپ لوگوں کو یقین کیوں نہیں آ رہا؟ بابا منتظر ہیں، دوسرے بھائیوں کو بھی بتا دیں. کہا یا معین، اپنے چچاؤں کو بلا کر لاؤ، جلدی کرو. کہیں پھر یوسف کے پرانے زخم تو کوریدنے کا ارادہ نہیں ہے بابا کا؟ یوسف زخم نہیں، غم ہے، ایک ایسا درد جو آپ لوگوں نے بابا کی روح میں اتارا ہے. مجھ میں نہ نصیحت سننے کا حوصلہ ہے اور نہ ہی تانا و تشنا برداشت کرنے کا. الجھنے کے بجائے بہتر ہوگا ہم خود چل کر دیکھیں کہ بابا نے ہمیں کیوں بلایا ہے. بہرحال میں نے پیغام پہنچا دیا ہے، آنا نہ آنا اب آپ لوگوں پر منحصر ہے. ٹھہرو، ساتھ ہی چلتے ہیں. اب غصہ چھوڑو، ٹھیک ہے؟ دنیا و آخرت کی زندگی میں دو گروہوں کی عاقبت کبھی بخیر نہیں ہوتی اور خیر و برکت کی سعادت نصیب نہیں ہوتی. بھلا تم میں سے کون بتا سکتا ہے کہ وہ دونوں گروہ کون سے ہیں؟ میں بتاؤں دادا جان؟ ہاں بتاؤ. وہ جو اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کرتے اور انہیں اذیت پہنچاتے ہیں. آفرین ہے تم پر. تم کس کے بیٹے ہو؟ میں فرزند لاوی ہوں. اچھا، تو تم کہات ہو. آفرین، درست ہے، خوب. اور وہ دوسرا گروہ کون سا ہے جس کا انجام اچھا نہیں ہوتا؟ تم اسے کون بتائے گا؟ کیا میں بتاؤں دادا جان؟ تمہیں تو میں پہچانتا ہوں، اشبیل ہو تم، فرزند بن یامین. بتاؤ میری جان. وہ جو اپنے سے بڑوں کا احترام نہیں کرتے. آفرین میری جان. جو بڑوں کا احترام نہیں کرتے، خواہ وہ عمر کے لحاظ سے ہو یا ایمان کے لحاظ سے، دنیا اور آخرت میں ان کا انجام کبھی بخیر نہیں ہوتا. وہ لوگ دنیا اور آخرت میں کبھی بھی سرخرو نہیں ہو سکتے. میں ان کے لیے جنہوں نے اپنے پیغمبر اور اپنے بوڑھے ضعیف باپ کی حرمت کا پاس نہیں رکھا بہت فکر مند ہوں. خداوند ان کی عاقبت بخیر کرے. سلام بابا. سلام درود پر نبی خدا. سلام ماں. سلام پر نبی خدا. سلام پر نبی خدا. سلام بابا. آپ سب پر بھی خدا کا درود ہو.
आप आ गए? जी बाबा। ये सख्ती और खुश्कसाली एक नेमत है और मैं मुस्तकबिल के हवाले से काफी पुरुमीद हूं। अलबत्ता तुम जैसे सुस्त कामचोरों से कोई उम्मीद नहीं। हम मौत के दहाने पर खड़े हैं बाबा, लेकिन इन लोगों को तो कोई परवाह नहीं। ये तुम लोगों को क्या हो गया है? आखिर कब तक यूं ही सोगवार बैठे रहोगे? मेरा ख्याल है तुम लोग मर्द हो और हर एक के दोष पर पूरे एक खानदान की जिम्मेदारी है। अब क्या चाहते हो कि यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहो और अपने खानदान के एक एक फर्द को मरता हुआ देखो? आखिर और हम कर भी क्या सकते हैं बाबा? अगर तुम मर्द लोग कुछ नहीं करोगे तो क्या हम खवातीन करेंगी? कोई कोशिश, कोई जुम्बिश यूं ही बेकार तो नहीं बैठा जा सकता ना। लेकिन बाबा, आप तो जानते हैं कि आसपास के तमाम शहर और देहात भी काहत का शिकार हैं। ऐसे बताएं, अब हम क्या कर सकते हैं? मैंने उस ताजिर मलिखा और चंद दूसरे लोगों से सुना है कि मिस्र के हालात काफी बेहतर हैं। अजीज मिस्र ने काफी मिकदार में गंदम जखीरा की हुई है। तुम लोगों के पास जितने भी दिरहम और दीनार हो सब जमा करो और मिस्र के लिए रवाना हो जाओ। शायद इसी तरह अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ कर सको। यहाँ बैठकर सिर्फ परेशान होने से कहत की मुश्किल तो हल होने से रही। सलाम सलाम बाबा। सलाम सलाम बेटा। बाबा, हम जाने के लिए तैयार हैं। आपकी इजाजत है? बाबा, क्या आप इजाजत देंगे कि मैं भी अपने भाइयों के हमरा चला जाऊं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं। तुम यहीं मेरे पास रहो और अपने भाइयों की अदम मौजूदगी में तमाम खानदान वालों को संभालो। जैसा नबी खुदा मुनासिब समझे। आया नबी खुदा सफर के लिए हमारी कोई रहनुमाई नहीं फरमाएंगे? जैसा कि मैंने बताया कि मैं इस कहत के नताइज से काफी पुरुमीद हूँ, लिहाजा नसीहत करता हूँ कि सफर में पेश आने वाले वाकयात को खैरुस्सलाह समझना, न कि मुश्किलात और रुकावटें। हर वाकये में कोई न कोई हिकमत पोशीदा होती है। हमारे हक में दुआ कीजिएगा बाबा। खुदा निगहदार हो। हमारे लिए दुआ खुदा कीजिएगा निगहदार बाबा। बिनियामीन। फिर खुदा मिलेंगे निगहदार। बाबा। इत्मीनान रखिए, हम हालियात नहीं लौटेंगे। खुदा निगहदार। खुदा निगहदार। सब हरकत करेंगे। अपना ख्याल रखना। खुदावंदा, इन्हें कामयाब और सही और सलामत लौटाना। आमीन। बानो जुलेखा कहाँ? अब कहाँ जा रही हैं? सुना है कि युजारसीफ सफर से वापस लौट रहा है। उसे देखने के लिए नील के साहिल तक जा रही हूँ। क्या तुम्हें यकीन है कि वो आएगा भी? हाँ, मुझे यकीन है जल्द बदेर वो जरूर आएगा। देखा तुमने, कितनी सादा और भोली है। गोया तुम्हारी तंजिया बातें उसे समझ ही में नहीं आई। लगता है अपनी अकल से हाथ धो बैठी है, लेकिन मैं फिर भी उनके लिए एहतराम की कायल हूँ। दीवाने भी काबिल एहतराम हुआ करते हैं। हमेशा बच्चे और जवान युजारसीफ से मुतालिक झूठी झूठी खबरों से उसे बेवकूफ बनाते रहते हैं और उससे इनाम मिलते रहते हैं। इसके बावजूद कि अब उनकी तमाम शान शौकत खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो नाउम्मीद नहीं हुई है। युजारसीफ की खबर सुनते ही उन्हें देखने के लिए चल पड़ती हैं। युजारसीफ तो हर रोज किसी न किसी शहर में होता है, उससे मिलना इतना आसान नहीं।
क्या हुआ? ये आपका यूजारसीफ आया नहीं? मुंतजिर हूँ, बिलाखिर कभी तो आएगा। मेरा यूसुफ जरूर आएगा। आपको यकीन है? हाँ, मुझे यकीन है वो आएगा। सूरज हमेशा तो बादलों में नहीं रहा करता। बस करें बानो, बस करें। क्या आपने सुना नहीं कि वो किसी एक शहर में नहीं ठहरते? आपकी आंखें यूसुफ के इंतजार में सफेद हो गई हैं। अब तो बस कर दें। जानती हूँ वो बेवफाई करता है। मेरा काम इंतजार करना है और यूसुफ का काम इंतजार करवाना। मैं यहाँ तब तक आती रहूंगी जब तक कि वो आ नहीं जाता। इस मुसलसल इंतजार से आप थकी नहीं? आखिर और कितना इंतजार करेंगी? तुम आशिक नहीं हो ना? मेरी तो पूरी जिंदगी इंतजार है। अगर इंतजार ना करूं तो किसके लिए जिंदा रहूं? ये इंतजार मुझे पुरुम्मीद रखता है, मेरी जिंदगी को एक मकसद देता है। यूसुफ की खुशबू आ रही है। यूसुफ की खुशबू आ रही है। यूसुफ यही कहीं है। मैं उसकी बू महसूस कर रही हूँ। आपको वहम हो गया है बानू। यूसुफ यहाँ कहाँ से आए? नहीं नहीं, मुझे पूरा यकीन है वो जरूर यही कहीं नजदीकी है। जरा गौर से देखो। पागल दीवानी, भला यूसुफ यहाँ कहाँ से आए? माफ कर दीजिए बानो, मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया है। मैं बेख्तियार हो गई थी। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं। गिला तो मुझे यूसुफ से है। अगर वो आ जाता तो ये लानत मलामत न सुननी पड़ती। लेकिन वो आएगा। बिलाखिर एक रोज ये इंतजार खत्म होकर रहेगा। ये जमीन फिलहाल बंजर है, लेकिन जल्द ही कहत खत्म हो जाएगा। ये जमीन मिस्र के बहुत से गरीब काश्तकारों के लिए काफी होगी। अब ये तमाम मेराजी हुकूमत मिस्र की मिल्कियत है।
ہمیں ان ساری زمینوں کو نادار کاشتکاروں میں تقسیم کرنا ہوگا تاکہ وہ اس پر اپنے لیے کاشت کریں اور حکومت کو محصول ادا کریں۔ یہ تو بہت اچھا ہوگا، اس طرح تمام غلام صاحب زمین ہو جائیں گے۔ نہیں معلوم اس وقت اہل کنان پر کیا بیت رہی ہوگی، وہ قحط میں کیا کر رہے ہوں گے۔ اے کاش میرے بابا اور بھائی یہاں ہوتے اور وہ ان وسیع زمینوں پر کاشتکاری اور غلہ بانی کرتے۔ جب یہ اتنا بڑا دریائے نیل اس طرح خشک ہو گیا ہے تو ظاہر ہے کہ کنان کی حالت کیا ہوگی۔ درود بر سالار کاروان بابل، آپ نے یہ گندم کہاں سے حاصل کی ہے؟ آپ پر بھی درود ہو، مصر سے آئے ہیں، آپ بھی جائیے، خالی ہاتھ نہیں لوٹیں گے۔ کیا ابھی کافی مسافت باقی ہے؟ وہ مصر کی حفاظتی چنگیاں نظر آ رہی ہیں، زیادہ دور نہیں ہے، قریب ہے۔ سپاس گزار ہوں، خدا نگہدار۔ خدا نگہدار۔ جلدی کرو، جلدی جلدی قدم بڑھاؤ۔ واہ، اب تک تو بڑی بیزاری سے مصر آ رہے تھے، اب کیا ہو گیا؟ اب تک کوئی امید جو نہ تھی۔ کہاں جا رہی ہیں؟ ہوا بہت سرد ہے، آپ بیمار ہو جائیں گی۔ سردی کا علاج تو گرم لباس سے کیا جا سکتا ہے۔ اگر آسمان سے پتھر بھی برسے تب بھی میں ضرور جاؤں گی۔ رک جائیے، موسم کے بہتر ہوتے ہی ساتھ چلیں گے۔ کیا گوشہ نشین ہو جانا رسم عاشقی ہے؟ اس پتھر کے مجسمے کے سامنے اتنے دن بیٹھی، انتظار کیا، کیا ہوا؟ کیا یوسف آئے؟ آپ اس مسلسل انتظار سے تھکی نہیں؟ آخر تم لوگ سمجھتی کیوں نہیں؟ ہر رات یوسف کی دیدار کی امید میں آنکھیں بند کرتی ہوں اور صبح اس کے دیدار کی آس میں اس پتھر کے مجسمے کے سامنے انتظار کرنے بیٹھ جاتی ہوں۔ یوسف کا انتظار ہی آپ میرا مقصد حیات ہے۔ میں کبھی بھی مایوس ہو کر انتظار کرنے سے نہیں تھکوں۔ اب صرف یوسف کا انتظار ہی تو میرے پاس رہ گیا اور تم لوگ مجھے سے منع کر رہی ہو۔ اب ہم آپ کے پیچھے نہیں آئیں گے بانو۔ جہاں جانا چاہتی ہیں جائیں، آپ دیوانی ہو گئی ہیں، بالکل دیوانی۔ اگر آپ نے اپنی زندگی برباد کر ڈالی ہے تو ہم کیوں برباد کریں؟ چلو، میں تو اتنی سردی میں باہر نہیں نکل سکتی، ان کے لیے اپنا دل جلانا بیکار ہے۔
सर्दी में तुम्हारा कोई घर या ठिकाना नहीं है? कसर है ना महल की तरह कुशादा, अब्र की तरह तंग, जिंदान की तरह तारीख। घर है मेरा। जो भी है यहाँ से तो बेहतर होगा। यहाँ तो बीमार पड़ जाओगी। मैं किसी की मुंतज़िर हूँ। किसी ने बताया कि वो आएगा। अगर नहीं आया तो चली जाऊंगी। चलो चले। क्या हुआ? तुम लोगों ने तो मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया था ना। कोशिश तो बहुत की, लेकिन हो ना सका। हमें आपकी आदत हो गई है बानो। बचपन से आंख खोलते ही सिर्फ आप ही को देखा है। आप ही के कसर में पले बड़े हैं। किसी और जगह से तो हम वाकिफ भी नहीं। मेरा पीछा छोड़ दो। मेरी तन्हाइयों में मुखल मत हो। लेकिन हम आपको यूं तन्हा तो नहीं छोड़ सकते ना। तुम्हारे साथ जब होती हूँ तो तन्हा हो जाती हूँ, वरना हमेशा हर जगह यूसुफ मेरे पास होता है। तुम दोनों क्या थी, वो मुझे छोड़कर चला जाता है। क्या इनका ये इश्क हवस पर मबनी है? क्या अब भी वो कोई नफसानी ख्वाहिश रखती हैं? मुझे नहीं लगता। अब जुलेखा के पास बचा ही क्या है जो वो कोई नफसानी ख्वाहिश रखें। वो जैसे जैसे बूढ़ी होती जा रही हैं, उतनी ही दिल नशीन होती जा रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं जुलेखा को भी पसंद करने लगी हूँ और इश्क जुलेखा को भी। नाम और पता वगैरह लिख कर दे दो। हम 10 भाई हैं। मैं लावी हूँ, ये शमून, यहूदा, जाद, दान, जबूलू, यसाकिर, अशीर, निफ्ताली, रूबीन। हम सब फर्जंदान याकूब और किनान के रहने वाले हैं। तुम 10 अफराद भाई हो, तिब्स किस लिए आए हो? दूसरे लोग किस लिए आए? हम भी दूसरों की तरह। तुम्हें दूसरों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मेरे सवाल का जवाब दो। तुम लोगों की मिस्र आने की वजह क्या है? हम गंदुम खरीदने के लिए मिस्र आए हैं। हमारी सरजमीन किनान भी कैद की जद में है। हमें बताएं अब हमें क्या करना होगा। हमें मामूर किया गया है कि अजनबी लोगों की मुकम्मल मालूमात हासिल करें। हमें मालूम होना चाहिए कि तुम लोगों ने इससे कब्ल यहाँ से गंदुम हासिल किए या नहीं। आया गंदुम के ताजिर हो या काहतज़दा। अपने नाम, पते और कुल तादाद लिखो। ये इतने सारे बहाने किस लिए? अगर गंदुम नहीं बेचना है तो इतना तंग क्यों कर रहे हो? ये यहाँ के कवानीन है। अगर कबूल नहीं है तो जा सकते हो। जहाँ कोई गंदुम नहीं है यहाँ। बस करो शमून। मैं आपसे माजरत चाहता हूँ जनाब। अगर ये कवानीन सबके लिए हैं तो हम भी इनका एहतराम करेंगे। आप बताइए अब हमें क्या करना होगा। अपने तमाम कवायद इस कागज पर दर्ज करें। वो हम जनाब यूजारसीफ की खिदमत में पेश करेंगे। देखें वो क्या हुक्म देते हैं। तुम और तुम्हारे दीगर भाई मेरे हुक्म लाने तक यही दरवाजे के बाहर इंतजार करें। बहुत बेहतर जनाब। इसमें लड़ने झगड़ने की तो कोई बात ही नहीं। हम यहाँ गंदुम लेने आए हैं या लड़ने झगड़ने? तुम लोगों की तो आदत हो गई फितना फसाद की। या नबी खुदा, दरवाजा सूरिया का निगहबान गुजारिशात पेश करना चाहता है। क्या इजाजत है? हाँ, बुला लीजिए उसे। दुरूद बरारी जनाब यूजार से। दुरूद खुदावंद हो तुम पर भी। हाँ कहो,
क्या बात है? गुज़िश्ता हफ्ते दरवाज़ा सूरिया से शहर तिब्स में दाखिल होने वाले गैर मुल्कियों की कुल तादाद 390 थी। सबने एक एक बोरी गंदम खरीदी और उसी दरवाजे से वापस चले गए। उन सब का ताल्लुक हमारे कुर्ब जवार के हमसाए ममालिक शामात वगैरह से था। बस और कोई ख़ास बात नहीं है। अलबत्ता आज 10 भाई जो अपने ताल्लुक केनान से बताते हैं वारिद शहर होना चाहते हैं। केनान से 10 भाई? नाम नहीं पूछे उनके? क्यों नहीं आली जनाब, उनके नाम इसमें दर्ज कर दिए गए हैं। वही है, बनी इसराइल। क्या हुआ नबी खुदा? क्या कोई नाखुशगवार वाकया पेश आया है? इसमें ऐसा क्या लिखा हुआ था? कुछ नहीं बानो, सिर्फ उन 10 भाइयों के नाम दर्ज थे। मालिक, उन्हें एहतराम के साथ कस्र आखनातून ले जाइए। आपको खुदा का वास्ता कुछ तो बताएं। आखिर आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बिलाखिर तकदीर मेरे भाइयों को मिस्र ले आई है ताकि वादा खुदाबंदी की तकमीलियत का अपनी आंखों से मुशाहिदा कर सकें। इतने तवील अरसे बाद? इरादा खुदाबंदी यही था कि हम एक दूसरे से इतने अरसे दूर रहें। बस मेरा आपसे ये तकाजा है कि यहाँ मेरे भाइयों की मौजूद